वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट के लेक्चर नंबर 15 में। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप और वाइल लूप से जुड़े हुए कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। तो हम आज जो है एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम हमारे लिए है दैट इज़ कॉल्ड एज जंपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो जैसे कि हमने नाम, हमारे टॉपिक का नाम ही दे रखा है यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट्स। सो जंपिंग स्टेटमेंट्स के अंडर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है, एक है ब्रेक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है दैट इज कंटिन्यू एंड द थर्ड ऑप्शन इज पास। सो जंपिंग स्टेटमेंट्स के अंडर हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रेक, सेकंड इज कंटिन्यू एंड द थर्ड वन इज पास। ओके। सो सबसे पहले इस ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि बेसिकली ये दोनों क्या हैं और इनका पर्पस क्या है। फॉर एक्सप्लेनिंग देयर पर्पस मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है। सो ब्रेक से क्या होता है एंड कंटिन्यू से क्या होता है, फॉर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस चीज़ को समझाता हूँ मैं। Suppose if I have written a for loop like for I in range 1, 5, okay, colon, और suppose इसके अंदर मैं लिख देता हूँ if I is equal to 3 colon, in that case you have to execute the word that is break। ठीक है जी। and अगर ऐसा नहीं है देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। ओके। सो हमारे पास बेसिकली ये एक कोड बन गया। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ब्रेक कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। आई विल राइट अनदर कोड ऑल्सो दैट इज फॉर आई इन रेंज 1, 5, okay, then colon, and in this for loop I write if I is equal to 3, in that case the keyword used will be that is continue, and along with that if it is not true then we have to print the value of I. Okay, so I have written two codes. Everything is same in these two codes except over here I have written the break keyword, but in this case I have written the continue keyword. So let us see that what will be the output in order to understand the difference between the break and the continue keyword. Okay. So as we all know that when we run this loop that is for I in range 1, 5, so obviously the different values generated by this range function is basically 1, 2, 3, 4. As we all know that range function will generate a list which begins from the starting value that is 1 और वो कहाँ पे एंड होती है, जो भी आपको स्टॉप वैल्यू दे रखी है उससे एक कम पे। सो द स्टॉप वैल्यू राइट नाउ इज 5, सो उससे एक कम हो गया दैट इज 4। ओके। नाउ यही सेम टू सेम जो है ऑप्शन वो यहाँ पे भी रन होगा हमारे लिए। रेंज वाला फंक्शन यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा दैट इज 1, 2, 3, 4। सो इट विल जनरेट दीज 4 वैल्यूज। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज कोड्स एंड वी विल वॉच कि भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। ओके। मैं एक काम करता हूँ दैट वट एवर बी द आउटपुट, दैट आउटपुट विल बी गेट प्रिंटेड ऑन दिस बॉक्स। Same is over here. Okay. So let's see how this loop start executing. So now when this loop begins, first the I variable will get the value as 1. Okay, because the first value in this list is first, that is 1. So I gets the value 1, and when it comes down it will check whether the value of I is equivalent to 3 or not. But right now the value of I is 1, so the current value of I is 1 and that is equivalent to 3 is the wrong condition. Okay, so it is false. So as this is the false statement, so obviously the break statement will not execute because break is associated with this if statement. So if the if statement is false then this break will not execute. But okay, so now in this case also your condition is false, so break statement is not execute, and the control straight away comes to this print statement, and in this print statement what he has to do, he has to print the value of I.
Okay, so right now the current value of I is basically 1, so 1 get printed, right? Now after this for loop basically contains these statements. So after printing the value of I, the control moves back to the starting of the loop. Okay, over there when the control moves at the top of the loop, then the second value, that is 2, that value get assigned to the variable I. Okay, so after that the next value that I will get is basically 2. Okay, so now I get the value as 2. Now again the control comes down, it will compare the value of I with 3. So the right now current value of I is basically 2, and that is compared with the value 3. So obviously they both are not equal, so our result is basically false. So in this case also this break statement will not execute, because this break statement is basically connected with this if. Okay, so the condition of this if is false, so that's why break statement will not execute, and then the control straight away comes to this print statement. Okay, and what it will do, it will print the next value, that is the current value of I is right now 2. Okay, now after printing the value of I, the control again moves to the starting of the loop, and when it moves to the starting of the loop, now the next value, that is 3, will get stored in the variable I. Okay, so now you know that the variable I will get the value 3. Okay, after getting the value, the control comes down and it compares the current value of I, that is 3, that whether that current value of I, that is 3, is it equivalent to 3? Obviously 3 is basically equal to 3 is the true part. Okay, so as this condition is true, then what will happen? Then the break statement that is associated with this if execute. Okay, so on executing, this break statement will transfer the control out of the loop. Okay, so now you haven't reached the last value of the for loop, that is you reached till the value 3, you haven't reached to the last value, that is 4, but in between the loop your control moves out of the loop. ठीक है, अभी आपका for loop खत्म नहीं हुआ था, for loop ने अभी एक स्टेप और चलना था, बट ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या करा, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका कंट्रोल लूप से बाहर निकाल के ले आता है. ठीक है, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें क्या करना होता है, हमें लूप से अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम पहुंच जाएं तो हमें बाहर निकलना है. अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे पास लिस्ट है बड़े सारे नंबर्स की, ठीक है, एंड आई हैव टू चेक कि भैया ये जो यूज़र ने एक नंबर दिया है, ये नंबर उस लिस्ट को बिलोंग करता है कि नहीं. ठीक है, आई हैव अ लिस्ट ऑफ अराउंड 45 नंबर्स और यूज़र ने मुझे एक नंबर दिया. नाउ आई हैव टू चेक कि भैया ये नंबर उस 45 नंबर्स की लिस्ट में बिलोंग करता है या नहीं करता. So what will I do? I will compare my given number with the first element, then with the second element, then with the third, fourth, fifth, and suppose if the fifth element of the list is equivalent to the number given by the user, so obviously I stop my process and declare the result to the user that your number is yes present in the list. क्या मैं बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को चेक करूँगा? नहीं. और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सपोज मैंने आपको बोला कि आप उस साथ वाले कमरे में जाइए, ओवर देयर वहाँ पे 100 बुक्स पड़ी हैं, एंड आउट ऑफ दोज 100 बुक्स आप मुझे सर्च करके बताइए कि एक बुक है, सपोज मान लीजिए कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, प्रीति अरोड़ा इज़ द ऑथर एंड सुल्तान चंद पब्लिकेशन इज़ द पब्लिशर. सो आपको ये वाली बुक लेकर आनी है. नाउ जब आप उस रूम में गए तो आपने देखा वहाँ पे 100 बुक्स पड़ी हुई हैं. सो यू स्टार्टेड सर्चिंग द बुक. सो आपने पहली बुक उठाई, दैट इज़ नॉट द सेम. द सेकंड बुक उठाई, वो भी नहीं मैच करी. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सपोज जो फिफ्थ बुक आपने उठाई वो मैच कर गई. वो फिफ्थ बुक जो थी वही थी, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, और सुमिता और सॉरी दैट इज़ प्रीति अरोड़ा ऑथर था एंड सुल्तान चंद पब्लिकेशन, दैट इज़ अ बुक जो आपने सर्च करनी थी. सो वंस यू गेट दैट बुक जो आपने सर्च करनी थी, क्या आप बाकी बची हुई 95 बुक्स को कंपेयर करने का प्रोसीजर करोगे? नहीं यार. 95 बुक को अब मैं बाकी बची हुई बुक को क्यों चेक करूंगा, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड था वो मिल गया. सो ऑब्वियसली आई हैव टू स्ट्रेट अवे मूव फ्रॉम देयर. तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि जब कभी भी लूप के अंदर
ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, वो उस फॉर लूप से जिसके अंदर भी वो दे रखी है उस फॉर लूप से बाहर निकाल के ले आएगी, ठीक है, यानी कि आपका लूप बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट. एंड लेट्स सी कि भाई अब जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क होगी तो हाउ अवर रिजल्ट विल बी शोन टू अस, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो सबसे पहले जैसे ही लूप स्टार्ट होगा तो आई विल गेट द वैल्यू एज 1, ओके, एंड देन द कंट्रोल कम्स डाउन, इट विल चेक द करंट वैल्यू दैट इज 1, whether that value is equivalent to 3, so answer will be the false, okay, so that is not equivalent to 3, so ये continue वाला काम नहीं होगा, straight away नीचे आएगा and then it will print the value of I. The current value of I is right now that is 1, okay, so over here the 1 value get printed, right, and after printing this value then what will happen, the control moves back to the starting of the loop, okay, because all the statements related to the for loop is executed, so obviously the control moves back to the starting of the loop. Now जब वो वापस ऊपर जाएगा तो अब क्या होगा, after that I will get the next value that is 2, okay, and it will check that whether 2 is equivalent to 3, so answer is still false, okay, because 2 is not equivalent to 3, so the continue statement will not be executed and the control moves to this statement print I. So it will print the current value of I, that is 2. So the 2 value get printed. After that again control moves to the starting of the loop, right, and when it moves to the starting of the loop then I will get the next value that is 3, and when the control comes down it will check whether the current value of I, that is 3, is it equal to 3. Yes, they both are equal, so our answer is basically true. So now in this case the continue statement get executed. So when the continue statement get executed then what will it do, it will straight away transfer the control to the top of the loop from this point, ठीक है, कि भैया कंटिन्यू ने क्या करा कि आगे की लूप में जो बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, उसने उसी पॉइंट से कंट्रोल को वापस ऊपर भेज दिया. वैसे कंट्रोल वापस ऊपर कब जाता है, जब फॉर लूप के अंदर जुड़ी हुई सारी स्टेटमेंट, जो फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जब वो सब एग्जीक्यूट हो जाती हैं तब एट द एंड कंट्रोल वापस ऊपर जाता है. लेकिन अगर बीच में ही सपोज कहीं पे कंटिन्यू वर्ड एनकाउंटर हो गया तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को उसी पॉइंट से वापस ऊपर भेज देगा, ठीक है जी. सो अब क्या हुआ, इसने जैसे आई की वैल्यू 3 थी, सो 3 इज इक्वल टू 3 सही था, सो अंदर आया कंटिन्यू ने क्या करा, इसी पॉइंट से वापस उसको ऊपर भेज दिया. सो व्हेन द कंट्रोल मूव्स बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप तो क्या होगा, जब वो वापस ऊपर गया सो इन दैट केस आई विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 4. सो आई को नेक्स्ट वैल्यू मिल गई और कंट्रोल फिर अगेन लूप के अंदर आया. नाउ इट चेक्स कि भाई आई की करंट वैल्यू दैट इज 4, इज इट इक्विवेलेंट टू 3, सो द आंसर इज बेसिकली फॉल्स. सो नाउ एट दिस मोमेंट कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड इट विल सिंपली गो टू द प्रिंट आई, द करंट वैल्यू ऑफ आई गेट प्रिंटेड. सो right now the current value of I is 4, so 4 get printed, okay, and after that, after printing it, the control again moves to the top of the loop, okay, but now at this time the I will get no value, okay, so I will get no value because all the values of the list are assigned to this I one by one, okay. So now there is no value left for the I, so the loop terminates. So now you can compare the output of these two cases. We have every statement same. The thing we change is that in this case we have used the break keyword and in this case we have used the continue keyword. And you can observe that the output of in both the cases are different, right? So you have to remember one thing, ठीक है, कि भाई in case of break statement क्या करता है, it moves the control out of the loop, okay. So हम ये कह सकते हैं the break keyword moves the control out of the loop, ठीक है जी. The break keyword moves the control out of the loop, whereas
continue keyword moves the control at the beginning of the loop. Okay, so यहाँ पे हमें पता लगा break keyword moves the control out of the loop and continue keyword moves the control at the beginning of the loop, and these are the two examples for this break and continue. So I hope you understand that what is the purpose of the break and what is the purpose of the continue keyword. Okay, so let's do a program, okay, in which we are going to implement this concept of break keyword. Okay, so you have to note down this. First you note down the definition of the break, then this example, and after that you can note down the definition of the keyword and then this example. Okay, so I hope you understand that what is basically the functionality difference between the break and the continue. Okay, so let's do a question first. So now the question that we are going to do is so it's write a program to check whether given number is prime or not, whether given number is prime or not. Okay, so now we have to check that if a user gives a number to the program, then the program will check that whether that number given by the user is a prime number or not. Okay, so first of all, what is a prime number? The prime numbers are those numbers which get divisible by 1 and the number itself. ठीक है जी, जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, that's it. सपोज एक नंबर मेरे पास आया दैट इज 7, ठीक, और मैंने कहा यार इस 7 किस किस से डिवाइड हो सकता है. अब मैंने कहा चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है. सो भाई अगर इस नंबर ने डिवाइड होना है तो 1 से 7 के बीच में जो नंबर्स हैं उन्हीं से डिवाइड होगा, बिकॉज फ्रॉम द 7 के बाद 8 आएगा, 8 तो उससे बड़ा हो जाएगा ना, उससे डिवाइड होने का तो मतलब ही नहीं बनता. नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1 को और 7 को इनको रिमूव कर देता हूँ. मैं इन दोनों को कंसिडर नहीं करूँगा डिवीजन में, क्योंकि मुझे पता है हर नंबर 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता ही है. बस हमें तो ये कंफर्म करना है कि उनके अलावा और किसी से डिविजिबल तो नहीं है. सो अब मैं यहाँ पे 2 से लेकर 6 इन सारे नंबरों से चेक करूँगा. पहला नंबर 2 से जब मैंने उसको डिवाइड करके देखा 7 को, तो डिवाइड नहीं हुआ. देन 3 से करके देखा, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ यार. देन 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ. 5 से भी डिवाइड किया, वो भी नहीं हुआ. और 6 से भी डिवाइड किया, सो वो भी नहीं हुआ. सो ये 1 और 7 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ. सो व्हाट डज इट शो कि भैया ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भैया ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज बेसिकली अ प्राइम नंबर. ठीक है, दैट्स इट. इट इज दिस नंबर इज बेसिकली अ प्राइम नंबर. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज हमें एक नंबर दे दिया दैट इज 9, राइट. अब मुझे ये चेक करना है कि 9 प्राइम है कि नहीं है. तो मैंने देखा कि 9 अगर डिवाइड भी होगा तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इन्हीं नंबरों से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, एंड अब सपोज सेम हम वही काम करते हैं, हमने 1 को इग्नोर मार दिया एंड 9 को इग्नोर मार दिया. ठीक है, बिकॉज 9 जो है 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा. वी हैव टू जस्ट कंफर्म कि इन बिटवीन किसी नंबरों से डिवाइड तो नहीं हो रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 2 से डिवाइड किया. सो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ. नाउ व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3, सो हमने क्या देखा, यस 9 तो 3 से डिवाइड हो गया है. सो जैसे ही हमें पता लगा यस 9 जो है 3 से डिवाइड हो गया है, दिस इज ओके. सो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, दैट 9 इज बेसिकली नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है जी. सो अब एक बात बताओ, जब 3 से डिवाइड करते ही मुझे पता लग गया, जैसे 9 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, सो इट शोज दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो मैं ये बाकी बचे हुए नंबरों से क्यों डिवाइड करूं? ये बचा ना 4 5 6 7 8, इनसे डिवाइड करने की क्या रिक्वायरमेंट है यार? कोई ज़रूरत नहीं इनसे डिवाइड करने की. सो मैं अपने उस चेकिंग प्रोसीजर को यहीं पर ही होल्ड करना चाहता हूँ, यानी कि यहीं पर ही मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने प्रोसीजर को ब्रेक करना चाहता हूँ. ठीक है जी.
तो ये ब्रेक मैं किसके द्वारा कर पाऊंगा, ब्रेक कीवर्ड के द्वारा, ठीक। क्योंकि जब मैं चेकिंग का प्रोसीजर लगाऊंगा तो मैं यहाँ तो ऐसा लूप चलाऊंगा ना जो बेसिकली 2 से लेकर 6 तक रन करे। ओवर ईयर जब यहाँ पे भी वही बात होगी तो मैं ऐसा लूप लगाऊंगा जो 2 से लेकर 8 तक रन करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा कि भैया थर्ड एलिमेंट आते ही वो नंबर डिवाइड हो गया, सो मुझे अब बाकी लोगों नंबरों से डिवाइड करके देखने की जरूरत है ही नहीं। सो अब मुझे अपने लूप को कैसे टर्मिनेट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक कीवर्ड। ओके, तो चलिए जरा इस प्रोग्राम को हम लोग बना के देखते हैं कि भाई किस तरह से काम होगा। सो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यू फाइल ओपन कर ली मैंने, ठीक है। और अब जो हमें कंसेप्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा काम करते हैं, जो हमें यहाँ लॉजिक है उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नंबर लेना है यूजर से, तो हमने नंबर ले लिया नम इंट इनपुट, और यहाँ पे आ गया एंटर द नंबर, ठीक है जी। वो नंबर ले लेंगे जिसको हमें डिवाइड करके देखना है। सो नंबर आ गया हमारे पास। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अब मुझे जो चेकिंग का प्रोसीजर है, मुझे कहाँ से, मुझे जो चेकिंग वाला लूप लगाना है वो कहाँ से चलेगा, वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, और जो भी नंबर है उससे कम तक चलना चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और किससे कम तक चलना चाहिए, जो नंबर है उससे कम तक चलना चाहिए ना। तो यहाँ तो सिंपल हम नम को लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है कि यार जो रेंज वाला फंक्शन है वो इस नंबर से एलिमेंट्स जनरेट करता है, और जो यहाँ पे दे रखा है उससे कम तक जाता है, और वही हमें करना है। अच्छा, अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, अब मुझे पता है जैसे इस i को एक बार वैल्यू 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। अब मुझे 1 बाय 1 i की वैल्यूज को 7 से डिवाइड करके देखना है। सो इफ यूजर ने जो नंबर दिया है हम उस नंबर को i से डिवाइड करके देखेंगे कि दैट इफ जब हम i के साथ डिवीजन परफॉर्म करें तो क्या उसका रिमाइंडर इक्वलेंट टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि देखो भाई, हम कोई भी नंबर कैसे कह सकते हैं कि यार 2 ने 7 को डिवाइड कर दिया या 3 ने 7 को डिवाइड कर दिया। हम ये तभी कह सकेंगे जब हम उस नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था, हमने 2 से 9 को डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम नहीं कह सकते कि 9 इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन जब हमने 3 को 9 से डिवाइड किया, सॉरी 9 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिल गया ना। तो जैसे हमने 9 को 3 से डिवाइड किया, वी गेट द रिमाइंडर 0। तो व्हाट डज इट शो, इट शोज दैट 3 जो है वो 9 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकता है, ठीक है। सो अगर किसी भी नंबर को i से मॉड करने पर इफ वी गेट द रिमाइंडर एज 0, तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे दैट प्रिंट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब ये मैसेज दिखाने के बाद, जैसे सपोज हम यहाँ पे देखते हैं हमने पहले 2 से डिवाइड किया, नहीं हुआ, लेकिन जब हमने 3 से डिवाइड किया हो गया, और हमने ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो आफ्टर प्रिंटिंग दिस मैसेज मुझे अब क्या करना है, ब्रेक। ब्रेक मीन्स इस फॉर लूप से बाहर आ जाओ, बिकॉज अब हमें इस फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज अब जो नंबर हमने उसको i से डिवाइड किया, वो रिमाइंडर 0 हो गया, तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। सो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव आउट ऑफ द लूप। सो बाहर आने के लिए जैसे इस केस में हम लोगों ने क्या लगाया, ब्रेक, ठीक है जी। अच्छा चलो, यहाँ पे ये मैसेज तो मैंने दे दिया कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर सपोज वो नंबर प्राइम है तो उसके लिए मैं क्या कंडीशन डालूँ, क्या मैं यहाँ पे इफ़ के साथ एल्स लगा दूँ, नहीं, इफ़ के साथ आपने एल्स नहीं लगाना। द रीज़न इज़ दैट ऐसा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे 9 है नंबर, ठीक है। जब हमने उसको 2 से डिवाइड, जैसे 9 को हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम करेंगे 9 मॉड, सॉरी ठीक है, 9 मॉड 2 करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 तो नहीं होगा, ठीक है, ये 0 नहीं होगा। सो इन दैट केस क्या होगा, अगर वो 0 नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो इस अगर मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा तो एल्स में आ जाएगा वो। और अगर मैं यहाँ सोचूं ना कि एल्स में आगे प्रिंट कर दूंगा इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो देखो गड़बड़ कितनी होगी। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया एल्स प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर, तो खुद ही देख लो यहाँ पे कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। जैसे मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कोड भी समझ आ सके। तो देखो अगर 9 होता, ठीक है, नंबर अगर मेरा 9 है, तो जैसे i के अंदर पहले 2 वैल्यू आई,
फिर यहाँ चेक किया क्या 9 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं, तो वो एल्स में आता है, मैसेज प्रिंट करता है इट इज़ अ प्राइम नंबर। फिर ऊपर जाता, अब आई के अंदर 3 वैल्यू आ जाती, फिर वो चेक करता 9 mod 3 इक्वल टू 0 है, यस, तो अंदर आके वो मैसेज प्रिंट करता है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो मेरे पास मैसेज कैसे आता, पहले 2 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो पहले ये मुझे मैसेज देता है इट इज़ अ प्राइम नंबर, और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैसेज देता है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये तो बड़ा अजीब सा आउटपुट हो जाता ना मेरे लिए। सो रिमेंबर दिस थिंग कि भैया हमें यहाँ पे इसके साथ एल्स नहीं लगाना। अच्छा, हमने कहा चलो हमने उसको रिमूव तो कर दिया उस बात को, लेकिन अब हमें तो ये भी तो चेक करना है ना, ये भी तो होना दिखाना है ना कि इफ़ द गिवन नंबर इज़ प्राइम, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो देखो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन निकालता हूँ। सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने फ्लैग नाम लिया है, और मैं इस फ्लैग नाम के वेरिएबल को ना इनिशियली 1 रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर वो नंबर i से डिवाइड हो जाता है तो मैं मैसेज तो दिखा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक करने से पहले मैं इस फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ, दैट इज 0, ठीक है। सो इट मीन्स अगर नंबर किसी भी पॉइंट पे i की वैल्यू से डिवाइड हो गया तो मैं ये मैसेज दिखाऊंगा, फ्लैग की वैल्यू को 0 चेंज कर दूंगा, ब्रेक करके इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक केस दूंगा, अब 7 के केस में तो ये 7 तो इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा ना। सो यानी कि 7 के केस में अगर मैं लेके चलूँ तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू हो ही नहीं पाएगी ना। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में फ्लैग की वैल्यू थी वो 1 की 1 ही रहेगी, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है और वो अंदर आ रहा है। लेकिन अगर एक प्राइम नंबर है तो वो तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं ना, तो ये मैसेज तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं इन दैट केस। और जब ये मैसेज नहीं प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली फ्लैग की वैल्यू 1 से 0 भी चेंज नहीं होगी। सो मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप में आके, फॉर लूप से बाहर आके मैं चेक करूँगा इफ़ कि भाई फ्लैग की जो करंट वैल्यू है अगर वो 1 की 1 बनी हुई है, यानी कि इस लूप के ख़त्म होने के बाद भी वो 1 है, सो इट मीन्स वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने आंसर आ गया दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस कोड को एक बार रन करके देखता हूँ। सो लेट्स सी कि अब इसका आउटपुट हमारे सामने क्या आता है। पहले तो मुझसे ये प्रोग्राम सेव करने की बात कर रहा है, सो मैंने इसको P12 नाम से सेव कर दिया। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे एंटर नंबर मांग रहा है, सपोज मैंने 9 दे दिया तो देखो आ गया इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, इफ़ आई एंटर द वैल्यू एज 7, सो आ गया दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है जी। सो ये हमारा कोड हो गया जो बेसिकली प्राइम नंबर्स प्रिंट करने का काम हमारे लिए परफॉर्म करेगा। तो आप इसको कोड को एक बार देख के नोट भी कर सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड फॉर चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। सो जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू था। देयर इज वन मोर जंपिंग स्टेटमेंट दैट इज पास। पास का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कई बार हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज अगर हम कोई क्विज खेलते हैं, तो क्विज में एक होता है ना कि सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू नो द आंसर तो आप अपना आंसर दे दीजिए, बट इफ़ यू डोंट नो द आंसर, सो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलते हैं ना पास, कि भाई मुझे तो आंसर पता नहीं, बट मैं अब कंट्रोल जो है दूसरी टीम को पास कर रहा हूँ, सो दैट अब वो उनको अगर आंसर आता है तो दे कैन अटेम्प्ट द आंसर, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी पास कुछ इसी तरह से है, ठीक है। यानी कि जब आपको कंट्रोल को दूसरी स्टेटमेंट को पास ऑन करना होता है तो हम पास कीवर्ड को यूज़ करते हैं। बाकी हम इस पास को ना थोड़ा जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे उस समय हम इस पास कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है जी। बट फिलहाल अभी जो है आपको 2 कीवर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द ब्रेक एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यू, ठीक है जी। सो ये हमने एक क्वेश्चन देखा जहाँ पे हम जो है एक यूज़र एक नंबर दे रहा है एंड वी आर चेकिंग दैट वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। सो ये 2 केसेस आज हम लोगों ने पढ़े। आप इन दोनों केसेस को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए नाउ, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर जो है अब हमारी ये बेसिकली जो ये लूपिंग एंड कंस्ट्रक्ट वाला जो चैप्टर था, दैट इज़ कंडीशन एंड लूप्स वाला जो चैप्टर था, दैट इज़ फिनिश्ड, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।